फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय हमारा है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। PMEGP जो फर्स्ट पार्ट होगा इसका, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस स्कीम के सैलिएंट फीचर्स। और इस स्कीम के सैलिएंट फीचर्स हैं, नंबर 1, ये स्कीम अगस्त 2008 में इंट्रोड्यूस की गई और इसमें दो स्कीम्स का मर्जर करने के बाद इसे लॉन्च किया गया था। पहली स्कीम PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और दूसरी स्कीम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। ये इसमें मर्ज कर दिए गए और ये नई स्कीम अगस्त 2008 में लॉन्च कर दी गई। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी का प्रोग्राम है। और इसमें जो आपका नोडल एजेंसी है वो है KVIC। द स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री, एंड it is implemented by KVIC. KVIC is a single nodal agency for this scheme at the national level. At state level, we have got Khadi and Village Industries Boards. They are also the units of KVIC at the state level. At district level, we have got District Industry Centers, DICs. And in addition to that, the other stakeholders are COIR board. Some activities are related to the COIR board. So COIR board is there, and the banks and financial institutions. ये इसके stakeholders बन जाते हैं। दूसरा इसका जो मेजर फीचर है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम। तो जैसा इसके नाम से हमको लगता है, पहला पॉइंट, दिस स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर generation of employment or generation of employment opportunities in rural and urban areas, in both the areas across the country. That is the first objective. Second objective is to provide self-employment opportunities to the unemployed youth in rural and urban areas. Third objective is to check migration from rural to urban centers. If you can provide opportunities for employment or for self-employment at their doorstep, means in their villages, in the rural areas, the migration to the urban areas or urban centers may be checked. And the other important objective is bringing together all the traditional artisans in rural areas. And last objective is to increase the earning capacity of the workers. So these are the objectives of the scheme. Thereafter, we have to focus on margin, money and subsidy available under the scheme. So subsidy is credit linked. In rural areas and urban areas, it is different. In urban areas, the amount of subsidy is less. In rural areas, the amount of subsidy is more. And why it is more there? There it is more because we want to check the migration from rural to urban centers. So more incentives are provided in rural areas. कैसे? हमने दो कैटेगरीज में बेनिफिशियरीज को डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जनरल कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी इज स्पेशल कैटेगरी। सो विच इज नॉट स्पेशल इज जनरल। मैं आपको स्पेशल कैटेगरी के बेनिफिशियरीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें कौन कौन कवर है? इसमें कवर है, नंबर 1, द SC ST बेनिफिशियरीज, OBC, minorities, women, transgenders, differently abled, physically
handicapped are now called differently abled, and NER, Northeastern Region, all aspirational districts are covered. They are also under special category, and hill and border states as notified by the central government. So, general category, special category. Here we have to understand specifically three components: the project cost, the contribution of the beneficiary, and the margin money available or subsidy available under the scheme. So, the project cost decided, which is effective from 1st of June 2022. So, these are the latest guidelines issued by Ministry of MSME, and these guidelines are available on PMEGP portal of the ministry, and these guidelines are made effective from 1st of Jan 2022. और ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ अब तक भी जो किए ये सब उसी गाइडलाइंस का पार्ट है. सो दीज आर द लेटेस्ट चेंजेस वेयर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट. पहले हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोजेक्ट कॉस्ट होती थी 25 लाख. बिजनेस एंड सर्विसेज सेक्टर के लिए ₹10 लाख. नाउ दीज हैव बीन डबल्ड. फॉर मैन्युफैक्चरिंग sector, now the project cost maximum is 50 lakh of rupees. For business and services sector it is 20 lakh of rupees. तो 2 गुना हो गए हैं और ये मेजर चेंज इस स्कीम में आया है. और जब हम मार्जिन मनी सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो हमने बोला रूरल और अर्बन एरियाज के लिए अलग अलग प्रावधान है. पहला हम डिस्कस करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से दी बेनिफिशियरीज कंट्रीब्यूशन होगा 10% और अर्बन में सब्सिडी अवेलेबल होगी 15% और रूरल में सब्सिडी अवेलेबल होगी 25% फॉर जनरल कैटेगरी. फॉर स्पेशल कैटेगरी विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, दी beneficiaries contribution is 5% of the project cost and the rate of subsidy in urban areas is 25%, in rural areas it is 35%, more incentive, and rest of the amount will be financed by the banks. So we have covered up to this stage. Next point is eligibility. So any person who is of the age of 18 years or above is eligible if the project cost under the manufacturing sector, the project undertaken, the cost is beyond 10 lakh, and in services sector or business sector the project undertaken cost is beyond 5 lakhs, the person should be 8th passed. वहाँ पर 8वां पास होना चाहिए. और इसके अतिरिक्त और जो एलिजिबल चीज़ें हैं उसने अपनी एडुकेट ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूशन से, RCETI से, ROOTCETI से, नेशनल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और ऐसे तमाम EDIs यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से उनका ट्रेनिंग भी होना चाहिए. वो एलिजिबिलिटी का पार्ट है. और जब हम प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड इज नॉट इंक्लूडेड, और एनी अदर बेनिफिशियरी विच हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड सब्सिडी अंडर एनी अदर स्कीम इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल अंडर PMEGP. तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर डिफाइन कर देता है. फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, KVIC स्टेट लेवल, KVIBs, DIC at the district level, COIR board and banks. These are the implementing agencies. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से बैंक कवर्ड है? तो इसमें सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल कवर्ड, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज रेगुलेटेड बाय RBI ऑल कवर्ड,
Regional rural banks, all they have to participate in the program. Cooperative banks, they have to participate in the program, and SIDB, Small Industries Development Bank of India, SIDB is also there to participate in the program under this heading financial institution. Next is project cost and bank finance. I have commented on this. 50 lakh maximum for manufacturing sector, 20 lakh maximum for business and services sector, and the beneficiaries contribution and margin money subsidy available is reduced, rest of the amount is financed by the banks. If the cost is exceeding 50 lakh in manufacturing and 10 lakh in business and services sectors, the remaining part may be financed by the banks without any element of subsidy involved therein. वहाँ पर भी वो फाइनेंस कर सकते हैं. फिर इसमें ट्रेनिंग का एस्पेक्ट आता है. तो ट्रेनिंग के एस्पेक्ट में 3 पॉइंट्स मेजर कंसिडरेशन के लिए हैं. पहला, प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 2 लाख रुपए तक है तो आपकी ट्रेनिंग ऑप्शनल है, लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर अबव 2 अप टू 5 लाख है तो आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड दोनों के लिए अलग प्रोविजंस हैं. ऑफलाइन मोड में कम से कम 5 दिन का ट्रेनिंग आपका होना चाहिए और 30 आवर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. दूसरे एस्पेक्ट में, इफ योर cost of project is exceeding 5 lakh, then you have to undergo a training. जो मैंने इंस्टीट्यूशंस बताए आपको ऊपर, उनमें से किसी का भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. ऑफलाइन 10 डेज एंड ऑनलाइन 60 आवर्स. तो पहले का जो 5 लाख तक का था उसका डबल हो गया. वहाँ 5 दिन और 30 घंटे था, यहाँ पर 10 दिन और 60 घंटे का ट्रेनिंग आपको लेना है. अभी आपका जो बैंक फाइनेंस इन्वॉल्व है, इसमें 2 प्रोविजंस हैं. फॉर द फर्स्ट लोन आपको कितना फाइनेंस मिलेगा और कहां तक का है, तो वही मैक्सिमम लोन आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिलेट करेगा उसमें मैन्युफैक्चरिंग 50 लाख माइनस बेनिफिशियरीज कंट्रीब्यूशन माइनस मार्जिन मनी और सब्सिडी अवेलेबल, रिमेनिंग हैज टू बी फाइनेंस बाय द बैंक. तो ये आपके उसमें आ जाता है. मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने रूरल में कोई करना है जहाँ पर सब्सिडी एलिमेंट इज 35%, स्पेशल कैटेगरी का बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरीज कंट्रीब्यूशन इज 5%, सो बैंक फाइनेंस विल बी 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अंडरटेकन. क्योंकि 35 और 5 40% माइनस हो गया तो 60% बैंक उसमें फाइनेंस करेगा. लेकिन सेकेंड लोन में आपका ऑल कैटेगरी के लिए बेनिफिशियरीज कंट्रीब्यूशन इज 10% एंड सब्सिडी इन ऑल कैटेगरीज आइदर इट इज 15% और इट इज 20% इन NER एंड हिली एरियाज. तो 15% और 20% का सेकेंड लोन. लेकिन सेकेंड लोन में मैन्युफैक्चरिंग, एक तो इसकी कंडीशन है. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि फर्स्ट लोन प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया हो, यूनिट टर्नओवर के माध्यम से उसका सेटिस्फैक्ट्री टर्नओवर हो, परफॉर्म कर रही हो, परफॉर्मिंग वेल जिसको हम बोलते हैं, और इस प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए 3 चीजें, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी कंटिन्यूएशन. तो प्रॉफिट में है यूनिट, और उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है तो उसमें आपको सेकेंड लोन में प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ तक चली जाती है, 100 लाख. और अगर ये बिजनेस और सर्विस सेक्टर की यूनिट है तो ये सेकेंड लोन के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम 25 लाख तक चली जाती है. ये हमें ध्यान रखना है. फर्स्ट सेकेंड लोन का ये प्रोविजंस हैं. ट्रेनिंग आई हैव ऑलरेडी कमेंटेड अपॉन. लेकिन इसमें एक जब ये सिलेक्शन होता है, एक कमेटी DIC में जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द चेयरमैन, he can send his representative also, but he should not be below the rank of ADM. और इसके अतिरिक्त DIC के रिप्रेजेंटेटिव, एक्सटर्नल MSME रिप्रेजेंटेटिव, आपके
दूसरे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से, KVIC, KVIB, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ के इनको इवेलुएट करते हैं। और इवेलुएशन प्रोसेस में अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख तक है तो उसका स्कोर 50 से कम नहीं आना चाहिए, और अगर ये प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ऊपर है तो उस इवेलुएशन प्रोसेस में बेनिफिशियरी का स्कोर 60 यानी 60 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, ये रिक्वायरमेंट है। फिर हमको ये देखना है कि हमको एज बैंकर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चेक करने चाहिए या ऑब्टेन करने चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट हमको लेना होता है उसका कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा कैटेगरी सर्टिफिकेट। जनरल कैटेगरी में है तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन स्पेशल कैटेगरी में है तो स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। सब्सिडी में अर्बन और रूरल एरियाज अलग प्रोविजन है, तो रूरल एरियाज का सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट फॉर रूरल एरिया। ट्रेनिंग उसकी हो रखी है कि नहीं हो रखी है, टू एसरटेन दैट, तो हमको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए जिससे कि हम प्रोजेक्ट कॉस्ट को एवेल्युएट कर सकें, उसमें लैंड कॉस्ट को तो जोड़ नहीं रखा है या उसको आपने माइनस कर रखा है, ये चीज़ें चेक करने वाली हैं। और बाकी एनी अदर डॉक्यूमेंट विच मे बी रिक्वायर्ड एज पर दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट अंडरटेकन, तो वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी हमें भली भांति चेक कर लेना चाहिए, प्रॉपरली वेरीफाई कर लेना चाहिए। अब इसमें आता है फिर रीपेमेंट और सब्सिडी का एडजस्टमेंट, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रीपेमेंट 3 to 7 years होता है, सब्सिडी में एक लॉकिंग पीरियड है जो 3 years है, यानी 3 साल से पहले आप सब्सिडी एडजस्ट नहीं कर सकते, 3 साल के बाद सक्सेसफुली सब्सिडी को एडजस्ट कर सकते हैं। रीपेमेंट 3 to 7 years मैंने बताई दिया, डिपेंडिंग अपॉन दी जनरेशन ऑफ फंड बाय द प्रोजेक्ट अंडरटेकन। रीपेमेंट के बाद में ये आता है बोर्ड टू बी डिस्प्लेड। ऐसी यूनिट्स जो बैंक ने फाइनेंस करी हैं वहाँ पर जो बोर्ड डिस्प्ले किया जाएगा उसको भी KVIC ने ड्यूली स्टैंडर्डाइज्ड बाइलिंगुअल पहले से प्रेस्क्राइब कर दिया है इन्हीं गाइडलाइंस में, और वो बोर्ड हर यूनिट के बाहर लगा होना चाहिए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बचता है, और वो है कि 2 कंपोनेंट होते हैं बैंक फाइनेंस में, वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट एंड टर्म लोन कंपोनेंट। वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में शुड नॉट एक्सीड 40%, and in business and services sector units the working capital component should not exceed 60%। जो आपका टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट है उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, और 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बिजनेस एंड सर्विसेज सेक्टर यूनिट्स में। और इसमें मैंने आपके लगभग सभी एरियाज कवर कर दिए हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में ज़रूर मैं एक कमेंट कर सकता हूं बिफोर आई कंक्लूड। इसमें हमारे सभी बैंक्स इंक्लूडिंग SIDBI का आ जाता है, और इसके अतिरिक्त भी जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी इसमें इन्वॉल्व होंगे एजेंसीज में। और सब्सिडी इज ऑलवेज रूटेड थ्रू KVIC यानी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। So all the important features of this program or this scheme I have covered in this video. I hope this information, because some of my students were requesting कि सर PMEG पे ज़रूर एक वीडियो दीजिए, तो आज मैंने ये उनकी डिमांड पूरी कर दी है आपको ध्यान से सुनने के लिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, और अपने कमेंट्स, सजेशंस और क्वेरीज के रूप में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ।